Hello everyone, this is Samba Bate from Eastern Today News reporting from Khonsa Tera district। तो आज यहाँ में मार्च रैली कम ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया है बीजेपी एस्पिरेंट कैंडिडेट श्री जवांग होसाई की तरफ से। और आप देख सकते हैं यहाँ उन्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स, यूथ्स और हजारों की संख्या में पब्लिक आए हुए हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि श्री जवांग होसाई जो है 2019 के इलेक्शन में भी चुनाव लड़े थे ऐसे बीजेपी कैंडिडेट, जहां पर वो केवल 97 वोट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार वो पूरी उम्मीद की ओर से पब्लिक के सपोर्ट के साथ फिर से कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ ईस्टर्न टुडे में। अमरनाथ से श्री जवांग होसाई जो एकदम ग्रास रूट लेवल से बिलोंग करता है, हम लोगों को और भी मेहनत करना है। और मैं जानता हूं आप लोग काफी दिनों से, काफी साल से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, लेकिन और भी कुछ बाकी है, तो उसको हमको एक मंजिल तक पहुंचाना है। एक दिन करने जमा নহয় 5 साल करने जमा হৈ আছে। আমাৰ মাজত জৱাং হোসাই প্ৰজাৰ মাজৰ পৰা ইমান ইন্টাৰেষ্ট দি কিনি ইমান খুশি পৰা ইমান ফূৰ্তি পৰা ওলাই আহিছে। अगर अंदर से हम लोग देखेंगे तो अंदर का ये पूरा खोखला होके हम लोग का बोल रहा है। ऊपर में तो बहुत कुछ बना के दिखावा है, वो कंट्रैक्ट के लिए सिर्फ है। सभी लोग जानते ही होंगे ये चीज को। ये काम कर रहा है तो टिकट भी हमारा है, जीत भी हमारा है, चेंज भी हमारा है, डेवलपमेंट भी हमारा है। इस बार हम लोग मिल के जवांग होसाई जी को हम लोग सपोर्ट किया है क्लास में। उसको पसंद करके गांव-गांव से, बस्ती से पब्लिक लीडर लोग जो उसको सपोर्ट करने के लिए आया, उसको प्यार करके उसको मोरल रख के, तो वो सबको भी बहुत बहुत मेरा तरफ से रेस्पेक्ट। मैं लोंगो बस्ती से बिलोंग करता हूँ। मेरा अपना गांव में तो मैक्सिमम जवांग होसाई सर के साथ में है। सारा दिनটো আমি সদায় ৰখি থকা সময়টো দিনটো এতিয়া আহি পাইছে। हम आपको पूरा विश्वास है, ये 5 साल से तैयार किया हुआ आप लोग सिपाही है। লিডাৰশ্বিপ চেঞ্জ নহ'লে এনেকৈ মানে আমাৰবিলাকতো বেগ থাকিব নেকি? এনেকুৱা নহয়, বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টটো লোৱা যেন নহয়, দিয়া গভৰ্ণমেণ্ট হয়। আমাৰ পৰা একো দিব আমাকে। বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টটো ইণ্ডিয়াৰ বহুত ডাঙৰ পাৰ্টি আছে, আমাৰ পাৰ্টিক লগত দিবহি ল'বলৈ নহয়। মৰমটো পাই পিনে বহুত মন ডাঙৰ হৈ গৈছে। আপোনালোকে যোনটো মোৰ কেণ্ডিডেটৰ 57 বৰ্ডীয়া বাওপানীৰ কাৰণে যোনটো কেণ্ডিডেটৰ ছাপৰ্ট দিবলৈ আপুনিবিলাক ৰেলীৰ পৰা হৈ পিনে এইটো মিটিং লোকে ইমান ধুবত ইমান কষ্টৰ পৰা আহি পিনে ইয়াতে জইন অহাৰ কাৰণে চবক মই থেংক ইউ ছ' মাছ। মই আজি এইটো ষ্টেজতে এইটো জেগাতে ইয়াত মই খাৰা হ'ব পৰাটো মাত্ৰ একটাই কাৰণ
আছে এইটো আছে আপোনালোকৰ মৰম আপোনালোকৰ ব্লেছিংছ মই এইটো ফিল্ডত পলিটিকেল ফিল্ডত পুৰা যদি ফুল টাইম ক'লে মই 15 বছৰ পৰা ইয়াত আপোনালোকৰ সেৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক যিমান মই আপোনালোকৰ কাৰণে খানা হ'ব পাৰে সাৰ্ভিস দিব পাৰে এইটো ট্ৰাই কৰিব মই 15 বছৰ পৰা ইয়াত লাগি আছো আৰু মোৰ जीवन मोर लाइफ फॉर लास्ट ब्रेथ लुके अंतिम सांस लुके मैं अपना लोकर कारण सर्विस ते থাকিম বুলি মই প্ৰতিজ্ঞা লৈছো এই মাত্ৰ ইলেকশন কথা নহয় এইটো মোৰ যোনটো 2024 মিশন কয় এইটো অকলে নহয় মোৰ লাইফ লং মোৰ ভিতৰতে যিমান লোকে মুকে মোৰ ভিতৰতে সাহস থাকিব এইটো মই 57 বৰ্ডাৰ বগা পানী আপোনাৰ সবৰ সেৱাতে মই ঘটাম বুলি মই এইটো প্ৰমিস কৰিছো আমাক চেঞ্জ লাগে চেঞ্জৰ কাৰণে আমি পুৰা ৰাজ্য যিমান বি 57 বৰ্ডাৰ বগা পানী ডাঙৰ পৰা হৈ পিনে সৰু লোকে গৰীব পৰা হৈ পিনে ধনী লোকে যিমান বস্তি বস্তি থাকে টাউনতে থাকে সব একটা হে চিঞৰি আছে চেঞ্জ 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 আৰু এইটো চেঞ্জ কোনে আনিব আমি আনিব এইটো আমি চেঞ্জ কাৰণে সবে লগতে খাৰা হ'ম বুলি একটা প্ৰতিজ্ঞা ল'বলৈ ইয়াত খাৰা হৈছো My name is Sri Matpua Wangsu and I am from Kami village. I am from same village from where our aspirant Jawang Hosai is belonging. तो सर हमें बताइए आपने जोवांग होसाई सर को सपोर्ट करने का फैसला कैसा लिया? Actually, the main reason behind supporting Jawang Hosai is the main thing is, first of all, which is not very important, but still we are childhood friend, okay? And first of all, I have told you that in the last interview also in the Northeast Eastern today, I have told last time also that I am a retired teacher. So I have taken voluntary retirement from the service, and one of the main objective is to work with Jawang Hosai for a change in the society. Okay, so my main reason for supporting him is that he's a good person. He's a good person, and he knows the problem of the poor people. And since he's from a very humble upbringing, from a very poor family, from a not even middle class, from a humble beginning, so I'm pretty sure that he is able to understand the problems of the poor. And we have experienced that our constituency, 50% Border Boga Party constituency, has been ruled by the royal family, especially from Border village, right from Wanglat Sahab to the present Lomondong. They belong from the royal family, so they have always been they have been living at a very high-profile life, a royal life. So they don't understand the problem of the poor. So thinking that Jawang may bring a change, I have supported him. That's the main reason. So सर जैसे हमें पता है कि 57 कॉन्स्टिट्यूंसी में सब अभी बीजेपी एस्पिरेंट कैंडिडेट्स हैं, तो इसके ऊपर में आपका क्या राय है? You see, right now it's Modi wave, the BJP wave in the whole country. We are only seeing the lotus flag flying all over India. So it is obvious that everybody wants to be in the power. But our Jawang Hosai sir, the aspirant, he has been with the BJP since many years. So it's not that he has come up gliding from some other place. He has been in the BJP since the last 7-8 years. And he is the main reason behind the BJP wave in our 50% border of opening constituency. And as per sources and as per all the media proofs, all the social media proofs, we have seen that Lomondong has also joined the BJP. But we are hopeful that the high level BJP committee, the high level election committee of the BJP, they will surely acknowledge the hard work of Jawang Hosai. And it is pretty proof, it's pretty good proof from today's gathering that Jawang Hosai still have a good command over the BJP. So the BJP leadership, I don't think they will deny a ticket to him. I'm sure that he will get a ticket. And today's gathering, you see, it just happened in just a matter of some little information from Jawang Hosai. There was no any such very big management for that also. No? Yesterday, they just informed us
that they will be gathering. So you see the outcome, the public flow. So I have little apprehension whether Jawang will get or not. I'm sure that he will get a ticket. That's what we feel. मेरा नाम यासुम तेयंग है और हम ऑल टू पी का GPM है। तो आज यहाँ पे हम जोवांग सर का सपोर्ट में आया हुए हैं। तो आज का दिन में हम अलग पार्टी से आए हुए थे, लास्ट टाइम इंडिपेंडेंट में था। फिर भी इस पर जोवांग सर को इसलिए आया कि पब्लिक का उसके लिए जो प्यार है, जो अपनापन है, वो जो जोवांग सर ने कायम रखा है, इसके लिए आया हुआ है। क्योंकि एक समय में ऐसे आदमी का मेंटलिटी, आदमी का सोच ऐसा कर दिया था कि हर एक MLA जो भी कॉन्टेस्ट करता है, जितने हारने का कोई मतलब नहीं, वो लोग आफ्टर इलेक्शन जस्ट गायब हो जाता था मतलब। और उसके बाद जस्ट 1 मंथ बिफोर इलेक्शन भी आके हम लोग का साथ इंटरेक्शन होता है या तो अपना दिखाता है। तो आज का दिन में हम देखा कि बीजेपी में जो सर 10 साल से रहते हुए मोदी का जितना भी छोटा छोटा गांव में जितना भी प्रोग्राम है वो खुद लीड करके और वो खुद फ्रंट में बैठ के वो अटेंड करके पब्लिक का साथ छोटा बड़ा आदमी ने देख के गाँव वाला का साथ इतना एडजस्ट कर पाए वो 4 साल। हम लोग का साथ ही बैठे आफ्टर इलेक्शन वो हारने का बाद भी हम लोग का साथ ही बैठे वो 4 साल ऑलमोस्ट। वो ज़्यादा दूसरा कैंडिडेट जैसा गायब नहीं हो गया था, ईटानगर या दिल्ली कुछ गायब नहीं हो गया था। वो गाँव में बैठा है, गाँव वाला का साथ ही बैठा है। इसलिए उसका सोच और उसका जो पब्लिक लिए जो सपना है उसका और जो पब्लिक को चेंजेस करना चाहते हैं, वो सोच के हम आज का दिन में उसका साथ पूरा फुली आया हुआ है। तो आज का दिन में एक चीज़ नोटिस किया कि हर कोई 4 to 5 कैंडिडेट बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं और हर कोई बोल रहा है कि बीजेपी टिकट मेरा है, हमको मिलेगा, मेरा पूरा फुली हो चुका है। तो ऐसे में थोड़ा सा दुख तो हो रहा है क्योंकि हम लोग तो बीजेपी बोलने से तो जोवांग सर को ही मानते आ रहे हैं। जब भी बस्ती बीजेपी प्रोग्राम होगा आज का दिन में या मोदी का प्रोग्राम होगा बोल के हम लोग जब भी सुनते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जोवांग सर आएगा या जोवांग सर का पार्टी आएगा। तो आज का दिन में सुनने आ रहा है कि बीजेपी में बहुत सारा ज्वाइन हो गया और टिकट क्लेम करे। तो मेरा ये कहना है कि जो जोवांग सर 10 ईयर्स सेक्रीफाइस किए बीजेपी के लिए कार्यकर्ता बन के, जो 10 ईयर्स वो टाइम दे सके, तो और कोई 1 महीना का अंदर में या 1 हफ्ता का अंदर में ज्वाइन करके टिकट दूसरा का हाथ में ले जाएगा, इतना तो बीजेपी गवर्नमेंट का ऊपर इतना इंडिया का इतना बड़ा पार्टी है। तो हम तो लगता नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा करेगा बोल के। तो मेरा एक विश्वास है कि बीजेपी गवर्नमेंट सही में सच्चाई का साथ देगा बोल के हमको ऐसे महसूस हो रहा है। तो हम 100% ये बोल सकते हैं कि टिकट तो जोवांग सर का ही है, ऑलमोस्ट उसका ही है। बाद में प्रॉब्लम हो गया तो वो अलग बात है। लेकिन इवन आज का दिन में हम लोग क्या प्रॉब्लम होता है या गलती से दूसरा का हाथ में चला जाता है, तभी आज हम लोग आज मोर देन 2000 आदमी आए, पूरा मन बना लिया कि उसको ही कैंडिडेट बनाएगा। लेकिन ये नहीं कि हम लोग बीजेपी को छोड़ने जा रहे हैं, बीजेपी को पसंद नहीं, ऐसे नहीं। जोवांग सर को इतना पसंद है और चाहते हैं कि टिकट उसको ही दो, अगर ना दो तो हम लोग इंडिपेंडेंस से कॉन्टेस्ट करेगा, इंडिपेंडेंस से आगे बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं कि बीजेपी से अलग होने के लिए नहीं, बीजेपी का साथ ही होगा, हम लोग बीजेपी को छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इंडिपेंडेंस से जीत के हम लोग इंडिपेंडेंस से अगर टिकट नहीं मिलता है तो इंडिपेंडेंस से जीत के जाएगा, लेकिन बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ेगा, बीजेपी में वापस आएगा। क्योंकि बीजेपी इतना अच्छा गवर्नमेंट है कि गांव तक हर फैसिलिटीज गांव वाला तक पहुंच रहा है। और बीजेपी हर दिल्ली में बैठ के अपना खुद ऑब्जर्वेशन जैसा एक छोटा सा गांव तिरप डिस्ट्रिक्ट में आके डेवलपमेंट कर सकता है, घर घर में फैसिलिटीज दे सकते हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट को तो इतना अच्छा गवर्नमेंट और इतना बड़ा पार्टी और इतना सही वाला पार्टी को तो हम लोग तो छोड़ने वाला नहीं। इंडिपेंडेंस से आएगा लेकिन बीजेपी के लिए आएगा, हम लोग बीजेपी को पीछा नहीं छोड़ेगा, बीजेपी का साथ ही रहेगा। वही मेरा तो वही कहना है। और लास्ट में क्या बोलूँगा, वही उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी का टिकट तो इस बार जोवांग होसाई का ही हो। थैंक यू। मेरा नाम लोनिया बायांग है और हम नक्सा बस्ती से है। मेरा जोवांग सर को सपोर्ट करने का वजह ये है कि हम लोग हमेशा एक ही चीज़ में रह के तंग आ गया, बोरिंग आ गया, ना ख़राब का समझ है ना अच्छा का समझ है। क्योंकि हम लोग 20 साल से एक ही चीज़ को खा रहे हैं, तो उसका टेस्ट दुनिया का और क्या टेस्ट होता है हम लोग को मालूम नहीं है। तो यही चीज़ की वजह से चेंज करके देखेगा। अगर हमको ये पता नहीं है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, बट मैं चेंज देखना चाहूँगा हमेशा। और सुनने में आ रहा है कि इधर से टिकट उसको मिलना है, इसको मिलना है। क्योंकि रिसेंटली ये क्यों हो रहा है बोलने से हम लोग का यहाँ में सुनने में आया है कोई नया भी घुस रहा है। क्योंकि बीजेपी में तो हर किसी को वेलकम है। तो मेरा ख्याल से जो भी आता है वेलकम तो करना है सबको। और बीजेपी का हाई कमान से मेरा ये रिक्वेस्ट है
कि टिकट जो है, जो कार्यकर्ता है, जो पहले से कर रहे हैं, उसको मिलने से ठीक है। हाँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि जो आ रहा है उसको नहीं देना है, उसको भी देना है, बट वो भी अपना काम करने देना है। काम करने के बाद अपना जो आगे का प्लानिंग है वो बताने के बाद अपना कुछ मन में तब, और जब कुछ चीज़ मिलता है तो उसका मिलने का भी मतलब कब बनता है, जब हम लोग कुछ मेहनत करते हैं। बिना मेहनत का अगर कुछ मिलेगा तो उसका वैल्यू नहीं रहता है। अभी ये चीज़ को हम क्यों बोल रहे हैं बोलने से, अभी नया आया है, नया पार्टी में ज्वाइन हुआ है, वो बोलेगा हमको टिकट चाहिए तो उसको टिकट दे देगा, तो टिकट का वैल्यू नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। उसको थोड़ा काम करना है, वो भी अपना जो आगे का काम है, जो बीजेपी के लिए, बसपा सरकार उसके लिए जो करना है, वो करने के बाद उसको मिलने से वो चीज़ का वो वैल्यू रखेगा। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरा बीजेपी हाईकमान से ये रिक्वेस्ट है, हम लोग का जोवांग सर पिछले 15 साल से 10 साल से बीजेपी के लिए, हम लोग के लिए यहाँ लड़ रहे, तो टिकट भी उसको मिलना चाहिए मेरा ख्याल से। थैंक यू। बॉर्डर विलेज से बिलोंग करता हूँ। आज আজি এইটোৰ কাৰণে আহিছে আমাৰবিলাক জোৱাং চাহাবৰ ৰেলী প্ৰগ্ৰামতে কেলে চবে বুলি লাগে চেঞ্জ লাগে, চেঞ্জটো যিটো চেঞ্জ লাগে আমাৰ 57 বৰদুৰীয়া বৰপানী কনষ্টিটুৱেঞ্চিতে, এই চেঞ্জটো আমি লাগে জোৱাং চাহাবে চেঞ্জ আনিব পাৰে। সেইকাৰণে তাৰ ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ 57 কনষ্টিটুৱেঞ্চিতে 8,000 ভোটাৰ আছে। তাৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে আমি পুৰা 20টা গাঁও তাতে ঘূৰিছোঁ। আমি তাতে দেখিছোঁ চব পুৰা বেছিটো ছাপোৰ্টাৰটো জোৱাং চাহাবৰ হয়। সেইকাৰণে আমি ধৰিছোঁ, আন্দাজ ধৰিছোঁ, মানে কমচম 8,000 ভোটাৰ পৰা 6,000 ভোটাৰটো জোৱাং লগত আছে আৰু জিতিব, সিয়ে জিতিব। আৰু আমাৰ বৰদুৰীয়া বৰপানী 57 কনষ্টিটুৱেঞ্চিতে একো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, না পানী, না বিজুলী, না ৰাস্তা। ৰাস্তা আপুনি চাওক, এইটো নক্সা পানীৰ ৰাস্তা আছে, লিং ৰোড একদম বেয়া। 20 বছৰ এইটো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই। আৰু খটং আলাম ৰাস্তা একদম বেয়া আছে। এইটো আমি আপোনাবিলাক চালে গম পাব কেনেকুৱা ৰাস্তা। আৰু কাইমে লাপটাং লিং ৰোড একদম বেয়া আছে। এইটো ভাল কৰিবলৈ হ'লেতো ডেভেলপমেণ্ট লাগে। ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লেতো আমাৰ এতিয়া চেঞ্জ লাগে, চেঞ্জ সলনি লাগে। এই চেঞ্জটো মানে কোনে লৈ আনিব পাৰে, তাকে আমি ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ। এই য়াং কেণ্ডিডেট আছে, আজিকালি মোদীয়ে কয় য়াং কেণ্ডিডেটৰ লগত টিকেট দিব, টিকেট বি এখেতে পাব। এইকাৰণে আমি এতিয়া যিমান মানুহ জমা হৈছোঁ এইটো তাৰ ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ। थैंक यू। मेरा नाम वांगफुआ वांगसू है और मैं खोतंग बस्ती से बिलोंग करता हूँ। हम लोग जोवांग सर को सपोर्ट करने का वजह बहुत है, क्योंकि जो अभी का फ़िलहाल जो प्रेजेंट एमएलए है उसको हम लोगों ने 20 साल बहुत ही उम्मीदों के साथ उसको सपोर्ट किया था और उसको वोट किया और उसको एमएलए बनाया। लेकिन जो वादा उसने किया था, लेकिन वो वादा पे खरा नहीं उतरा वो ना। इसलिए इस बार तो हम लोग जैसे भी हो जोवांग हुसैन सर को सपोर्ट करके नया एमएलए हम लोग भेजेंगे यहाँ से। वो भी हम लोग टिकट के बारे में भी हम बहुत यही उम्मीद करता है कि बीजेपी सरकार जैसे भी हो हम लोग का जोवांग हुसैन सर को टिकट उसी को दे। मेरा नाम होगांग वांगसा है, लोंगो जीपीसी प्लस स्टेट एग्जीक्यूटिव माइनॉरिटी मोर्चा में भी स्टेट एग्जीक्यूटिव है। मैं लास्ट टाइम तो अलग का साथ में था, जेडीएस पार्टी का साथ में था मैं, लेकिन इस बार मैं जोवांग हुसैन का उसका वे ऑफ काम करना, उसका ढंग, वो सब पसंद लग के मैं उनका भरोसा करके उनका साथ काम करने के लिए आया हूँ। और मैं ये अगर हमारा 57 का बीजेपी का बात किया जाए तो 57 बीजेपी तो जोवांग साहब ने ही पाल पोस करके बड़ा किया जैसा लगा है, क्योंकि हमारा 57 में बीजेपी एमएलए नहीं था, कांग्रेस एमएलए था। तो जितना भी कार्यकर्ता, जितना भी कामकाज करता था, वो सब में जोवांग हुसैन ने ही सपोर्ट दिया है। ही वॉज बैकबोन
तो हम लोग उनको बहुत भरोसा करता हूँ। और हाई लेवल में भी हम ये अपील करना चाहता हूँ हाई लेवल लोग को भी कि हम लोग को जरूर टिकट दिला देने से ठीक है, क्योंकि जोवांग होसै हारते हुए भी वो बीजेपी का काम साल भर करता रहा। वो ही एक्टिव लीडर है और वो जो बोलता है वो सही करता है। तो हम लोग पूरा जोवांग होसै को भरोसा है और इस बार जैसे भी हो टिकट मिलो ना मिलो वो पब्लिक का दिल जीत लिया है। हम लोग जैसे भी हो उसको इस बार 57 MLA के लिए भेज रहा हूँ। थैंक यू। Welcome to Eastern Today News. This is Samba Bate reporting from Khonsa, Tirap district. And today we have with us Jowang Hosai, a BJP aspirant candidate for the upcoming election of 57 constituency, Pudra Bogapani. So once again welcome to Eastern Today News, sir. थैंक यू सो मच। सर, जैसे आज हमें देखने मिला कि बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स आए हैं और हज़ारों की संख्या में आपके सपोर्ट करने के लिए पब्लिक आए हैं, तो आपका इलेक्शन को लेके क्या राय है? हाँ, थैंक यू सो मच। आज आप सभी ने देखा है जिस तरह से आज ये प्रोग्राम को एकदम जिस तरह से आदमी शामिल हुआ है, जिस तरह से मेरा कैंडिडेचर को सपोर्ट करने के लिए हर बस्ती से हर जगह से 57 बोडरा बोपानी के कोने कोने से लोग आए हुए हैं इतना प्यार करके हमको, तो उसमें हमको बहुत ही एक तरह का इमोशनल एक तो फीलिंग्स आ रहा है कि पब्लिक इतना सारा प्यार दे रहा है हमको, इसलिए हम वो लोग का हित में हमेशा सोचेगा, उन लोग का हित के लिए हम हमेशा काम करेगा, उन लोग के लिए ही हम खड़ा होते रहेगा, उन लोग का लाइफ में अच्छा मिलने के लिए, सक्सेस होने के लिए, सब कुछ में हम वो लोग को किस तरह से सेवा कर पाएगा वही मेरा दिल में हमेशा होते रहेगा। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। तो आज ये देखिए इलेक्शन करीब है, तो आप लोग ने खुद ही देखा है किस तरह से पब्लिक हमको सपोर्ट दे रहे हैं। तो हम आज जिस स्टेज पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं हम आज एक लीडर के हिसाब से, वो टोटली पब्लिक का प्यार और पब्लिक का सपोर्ट से है। मैं बहुत ही खुद को खुश नसीब सोचता हूँ कि इतना सारा लोगों ने मुझको प्यार किया, और आगे भी जिस तरह से इलेक्शन करीब हो रहा है तो उसमें मैं वो लोग को जो डिमांड है 57 बोडरा बोपानी में, जो डिमांड है पब्लिक का हर जगह हर बस्ती में कोने कोने में कि चेंज के लिए चेंज करना चाहता है मेरे थ्रू, तो उसमें मैं जितना मेरे तरफ से हो पाएगा मैं एकदम हार्ड वर्क करूँगा और अपना जो टीम है, अपना जो वर्कर्स है और भी संख्या को और भी बढ़ाऊँगा और चेंज 100% 57 में इस बार लाऊंगा बोल के सोच रहा हूँ। तो सर, जैसे हमें पता है 57 कॉन्स्टिट्यूंसी में सब बीजेपी एस्पिरेंट कैंडिडेट है और रिसेंटली जो कांग्रेस एमएलए थे वो भी बीजेपी ज्वाइन किया, तो अगर आपको बीजेपी टिकट ना मिला तो आप क्या चुनाव फिर से लड़ेंगे या आप एक मतलब उसे ये करेंगे, छोड़ देंगे? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है वो एकदम। तो इसमें बहुत सारा बोलने का है, फिर भी समय का उसको लेते हुए मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। इसमें देखिए 57 बोडरा बोपानी में फर्स्ट तो बात है, अब अभी जैसा बोला है जितना भी एस्पिरेंट है वो 57 बोडरा बोपानी में बीजेपी का है। तो अगला वो सोचना है कि क्यों पांचों कैंडिडेट बीजेपी का एस्पिरेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए 2019 में इलेक्शन हुआ और बहुत 6 कैंडिडेट थे लास्ट टाइम। तो 2019 जब इलेक्शन हुआ तब इलेक्शन रिजल्ट जब निकला है तब जो प्रेजेंट इनकम्बेंट एमएलए है उसने 33% मिला है, हमको 32 पॉइंट समथिंग मिला है। तो एकदम नैरो मार्जिन 97 वोट से हम हार गया था। उसके बाद में जब हार गया
तब उसमें डे 1 से इवन 57 बोडिया बोपानी में मंडल प्रेसिडेंट नहीं था, मंडल एग्जीक्यूटिव बॉडीज नहीं था, कोई भी नहीं था। तब मैंने इलेक्शन का ख़त्म होते हुए भी हाँ बहुत दुख में था, बहुत कष्ट में था, फिर भी मैंने सोचा कि पार्टी को जैसा भी फिर से खड़ा कराना है। इसलिए मैंने डे 1 से अपने साथ मेरे टीम को लेके एकदम नया जन्म जैसा फिर से डे 1 से एक बीजेपी को खड़ा करने में हम लगा है। और उसके बाद में पंचायत इलेक्शन आया। पंचायत इलेक्शन आया, उसमें मेरा लीडरशिप में वो कंटेस्ट किया, उसमें हम लोग बहुत सक्सेसफुल था। कांग्रेस एमएलए के होते हुए बावजूद भी बीजेपी ने जीपीएम हो जीपीसी हो, हम लोग का संख्या कांग्रेस से ज़्यादा हम लोग परफॉर्मेंस करवाया। तो उसमें जब पंचायत इलेक्शन ख़त्म हुआ और हम लोग बहुत खुश हुआ कि परफॉर्मेंस अच्छा है बोल के, फिर हम लोग जितना भी पार्टी ने प्रोग्राम देता है, स्पेशली हमको ऐसा प्रोग्राम देते हैं जैसे कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट बोल के, इवन मतलब उससे स्टेट ऑफिस से आ जाता है, आपको ये करना है, आपको ये काम करना है, या फलाना बस्ती में ये करना है, बस्ती बस्ती में ये काम करना है बीजेपी का। हर दिन मैंने काम किया मेरे टीम के साथ में, और 57 बोडिया बोपानी में हम लोग का बीजेपी मजबूत होते गया। उसके बाद जो पिछले इलेक्शन में 2019 में जो अन्य पार्टी में या मतलब बीजेपी में नहीं थे, इंडिपेंडेंट में थे, वो सब भी ज्वाइन हो गया। तो क्यों आज अभी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस एमएलए भी ज्वाइन होगी? ऑब्वियसली, क्योंकि पार्टी को ऐसा हम लोगों ने ऐसा मजबूत कर दिया कि कोई उससे बाहर बैठना ही नहीं चाहता है। तो पार्टी का अंडर में ही सब बैठना चाहता है बोल के, इंडिपेंडेंट से हो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस से हो, सब लोग अंडर में बीजेपी में आ गया। इसलिए आज अन्य पार्टी में कहीं नहीं मिलेगा कैंडिडेट, बीजेपी में सब आ गया। ये कारण क्यों है? हम लोगों ने मिलके, हम कार्यकर्ताओं ने एक दे खून पसीना बहा के हम लोगों ने उसको पार्टी को ऐसा मजबूत कर दिया, दूसरा पार्टी से लड़ने का हिम्मत ही नहीं है, इसलिए बीजेपी में आ गया। इसलिए सभी एस्पिरेंट्स बीजेपी में है। मैं 2 फरवरी 2015 से मैं बीजेपी में हूँ, हर दिन बीजेपी के लिए लड़ता रहा। और अब जैसे 2019 में कांग्रेस एमएलए था हम लोग का 57 कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो हर दिन हम लोग एक एक चैलेंज के साथ, नया प्रॉब्लम के साथ, नया चैलेंज के साथ हम लोग पार्टी के लिए काम करता रहा। पार्टी को जैसा भी खड़ा करना है, जैसा भी मजबूत है, 2024 में तो जीता नहीं है बोल के हम लोग काम किया, एक एक दिन काम किया। लेकिन जो कांग्रेस एमएलए हर दिन बीजेपी को कमजोर करने के लिए, बीजेपी कार्यकर्ता को कमजोर करने के लिए हर दिन काम करता रहा। लेकिन लास्ट में कुछ दिन, एक सप्ताह से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 25 में हम लोग का पार्टी में आ गया। तो उसमें कोई बुरा नहीं है, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि और मजबूत हो पार्टी, और मजबूत हो। लेकिन पार्टी में आके टिकट के लिए सोचना एकदम से आके, ये तो गलत बात है। ये हाँ, हम लोग लेकिन पूरा पार्टी में विश्वास है। हम लोग का बीजेपी एकदम एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस बोलते हैं, कैडर बेस है कार्यकर्ता लोग। इसलिए बहुत आशा के साथ में बहुत तकलीफ करते हैं। हर दिन हमेशा प्रोग्राम तो होते रहता है बीजेपी का। लोग बोलते हैं अरे नौकरी करने वाला से भी ज़्यादा तकलीफ है बीजेपी में काम करना। तो ऐसा करते गया हम लोग, इसलिए आज बहुत मजबूती से ये पोजीशन में है बीजेपी। और उम्मीद करता हूँ कि और भी मतलब
मजबूत होते रहेगा फ्यूचर में भी। और आपका सेकंड पार्ट था कि आपको टिकट नहीं देने से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बोले, गुगली बोलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें मैं अच्छा गुगली खेलता हूँ। तो इसमें क्या बात है, देखिए उस तरह का पार्टी नहीं है बीजेपी, हम पूरा उम्मीद करते हैं। क्योंकि देखिए नाम बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, नाम से कुछ नहीं होता है। जैसे व्यक्ति भी नाम से कुछ नहीं होते हैं, असल में उसका सोल जो है, उसका आत्मा जो है वो किस तरह का है। तो बीजेपी एक आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, एक डिसिप्लिन पार्टी है, इसलिए हम लोग बीजेपी में हैं। क्योंकि वो प्रिंसिपल है, उसका आइडियोलॉजी है अपना कैडर बेस। तो हम लोग बीजेपी में क्यों हैं, इसलिए है हम लोग, नाम का वजह से नहीं। तो कोई पार्टी में वो आइडियोलॉजी ही नहीं रहेगा, वो मतलब प्रिंसिपल ही नहीं रहेगा, उसका विषय में बोलने के लिए तो बहुत दुख का बात होगा इस तरह का होने से। क्योंकि आप खुद देखिए, आज ये आप जो मास को देखें, पब्लिक को देखें, कौन है, हमने खड़ा किया है। मैं बोल सकता हूँ एकदम उससे कि आज जो बीजेपी यहाँ में खड़ा है, अब देख लीजिए, किसी से भी पूछ लिए क्यों है बीजेपी, मतलब हमको बीजेपी बोलते हैं, नाम ही बीजेपी नाम देते हैं, जोवांग होसाई को ही बीजेपी नाम देते हैं 57 बॉर्डर बोपानी। तो ऐसा मजबूती से खड़ा किया। अब देखिए, तो देखिए हम लोग पहाड़ी आदमी है, बहुत सच्चा आदमी है, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंटिमेंटल है। जो चीज़ में हम लोग दिल लगा के जोड़ लेते हैं उसमें हम लोग रह जाते हैं। तो पब्लिक वैसा ही है, मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है। हम इलेक्शन में नहीं मिल रहे, कोई लीडर इलेक्शन में मिलने आता होगा, लेकिन हम इलेक्शन में नहीं मिल रहे। हम हमेशा से वो लोग का साथ में है, वो लोग का दुख में है, वो लोग का कष्ट में है, वो लोग का हर प्रॉब्लम में मैंने साथ खड़ा रहता हूँ। मैं तो पूरा पब्लिक के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो पब्लिक का सेंटिमेंट और पब्लिक का इमोशन वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वही हम लोग का सबका मतलब सेंटिमेंट को रखते हुए कोई भी डिसीजन लेंगे। लेकिन हम लोग उस स्तर पर नहीं पहुँचे हैं अभी। हम लोग को पूरा विश्वास है हम लोग का मोदी जी के ऊपर में, हम लोग का स्टेट में पेमा जी के ऊपर में, हम लोग का ब्यूराम वाघे जी का ऊपर में, हम लोग का DCM चौनामेन जी का ऊपर में। सबको हम लोग अपना लीडरशिप को पूरा भरोसा है कि जो भी निर्णय लेगा वो मतलब पार्टी का हित में, पार्टी का कार्यकर्ता का दिल को समझते हुए ही लेगा। और वैसा कुछ जो पब्लिक को पसंद नहीं है वो वाला डिसीजन कभी नहीं लेगा बोल के उम्मीद रखते हैं। क्योंकि वो लोग बहुत विजडम वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। तो हम लोग वो लोग का विजडम पे, वो लोग के विवेक पे पूरा विश्वास करते हैं और उसी पे हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। और अपना कार्यक्रम, अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग खड़े हैं। और बहुत वो नेगेटिव चीज़ को बिना सोच के हम लोग अच्छा ही सोच के रख रहे हैं। और मैं यही एक मैसेज देता हूँ हमारे हम लोग कुछ उस दिन भी हमारे लोंगडोंग साहब, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोंगडोंग साहब, हम लोग का MLA, ठीक है, हमसे उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उस दिन का उनका इंटरव्यू में देखा था कि पार्टी, कोई पूछा कि आप पार्टी क्यों ज्वाइन किया, तो वो पार्टी का आइडियोलॉजी, डिसिप्लिन को ही सोच के हम ज्वाइन किए बोल के बोल रहे थे। कोई मीडिया पर्सन पूछ रहे थे। लेकिन हम उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। उनको हम लोग सोचते हैं कि उनसे हमेशा सच ही निकलेगा, अच्छा बात निकलेगा। ऐसा मतलब
कोई झूठ बात नहीं निकलेगा, वैसा सोचते हैं। लेकिन हम जो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, पब्लिक, सारा पब्लिक देख रहे हैं कि वो पार्टी में घुस रहे तो सिर्फ टिकट के लिए घुस रहे जैसे लग रहा है हम लोग को। वो बहुत दुख का बात है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मतलब अगर सच बोल रहा है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम उनसे बहुत अच्छा चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। वो आइडियोलॉजी को, प्रिंसिपल को, बीजेपी का लीडरशिप को पसंद करके बोल के घुसे हैं, तो वैसे ही होना चाहिए पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी के लिए जो मेहनत करता है उसी को फल मिलना चाहिए। और फ्यूचर में भी तब पार्टी में संगठन में काम करने के लिए आदमी, कोई भी कार्यकर्ता जोश के साथ में काम करेगा बोल के हम लोग यही समझते हैं और यही सोचते हैं। तो फाइनली सर, आप अपने 57 के पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पब्लिक को, 57 का पब्लिक को मैसेज क्या है, वो लोग का मैसेज मेरे ऊपर में आया है। क्या मैसेज है? वो लोग को चाहिए चेंज चाहिए, हमें चेंज करिए। वो लोग का तरफ से, पब्लिक की तरफ से मेरा ऊपर में मैसेज है। तो मैं यहाँ में आज भी मैंने अपना स्पीच में बोला, मैं 57 बोडरा बोपानी का जितना भी यहाँ में पॉपुलेशन है, सबको यही आश्वासन देना चाहता हूँ। मैं आपका जो मांग है वो अब पूरा होगा। 2024 में मैं पूरा करूँगा आपका जो डिमांड है, पब्लिक का डिमांड है, चेंज। ये चेंज को मैं लाऊंगा 57 बोडरा बोपानी में, मैं बोलता हूँ। लेकिन मेरे ताकत से नहीं, पब्लिक का ताकत से, सबका प्यार से, सबका भरोसा जीत के, सब लोग से प्यार मिल के, सबका सजेशन के साथ। क्योंकि मैं एक आम आदमी से लीडर हुआ हूँ, एक आम आदमी का कष्ट समझता हूँ। आम आदमी का कौन सा बस्ती में क्या तकलीफ हो रहा है, सभी 57 बोडरा बोपानी आप देख सकते हैं। सड़क का हाल, स्कूल का, हेल्थ जो PIC सेंटर वगैरह है, सभी चीज़ में हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं। तो वो सब के लिए मेरा लड़ाई है। मैं 10-15 साल से मैं यही लड़ाई में हूँ। इसलिए इस बार तो मैं आश्वासन देता हूँ सभी पब्लिक को, मेरा फाइट, मेरा जो लड़ाई है आपके लिए है, आपके लिए रहेगा। और यह 2024 में सिर्फ नहीं, मेरा जब तक जान रहेगा, मेरा सांस में सांस रहेगा, मेरा बदन में सांस रहेगा, मैं 57 बोडरा बोपानी का हर व्यक्ति के लिए दुख में जो है, पीड़ित जो है, जो इतना बिना डेवलप होके बैठे हैं बस्ती में, इतना दुख तकलीफ से बैठे हैं, वो लोग के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा बोल के मैं सबको, ये मेरा तरफ से वचन है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।